हाँ जी, अंश sit properly बेटा. हाँ जी, good afternoon everyone. Welcome to the class. Now this is Rita ma'am, your history teacher, and today we are going to revise chapter 2, nationalism in India. Whenever we are talking about India, अंश थोड़ा बेटा सीधा होके बैठ. इस side turn कर. Light should be on your face, not from your back side. Okay. हाँ जी, little we have discussed India chapter yesterday. Okay, but now we are continue the next questions. Okay, we will start from. But you people were not present in the class yesterday. You people were not present in the class. So you tell me, starting we should discuss, or from in between, or in which type of revision you want. Shashank, unmute yourself, beta. Ma'am, may I bring my book? हाँ, I'll just. हाँ. Bring your history book and copy also. Rohit 10G. New class, from new class. Rohit, unmute karo beta. Yes, ma'am. From new 10G. No, ma'am. Okay. Shubham, on karo beta video, camera on karo. हाँ, now good. Ansh, now good. Ansh beta अपनी book ले आओ history की. Arrange your books and copies. Shubham, unmute karo and video on beta. Chalo. Now open your book. I will tell you the question as well as the answer. Okay. Nationalism in India. This is your book. Now show me your book in the camera. मेरी स्क्रीन पे आपको बुक नजर आ रही है, मुझे भी अपनी अपनी बुक दिखाओ. ठीक है, थैंक यू शशांक, मुस्कान. अंश, वेयर इज योर बुक? रोहित, क्योंकि बुक के बिना नहीं कर पाएंगे. हाँ, शशांक इज शोइंग मी कॉपी आल्सो. ओके, यस, ठीक है बेटा. अंश, शो मी योर बुक. रोहित, शो मी योर बुक. ओके, थैंक यू रोहित. शुभम, हर्षवर्धन, गुरप्रीत, कैमरा ऑन. अंश, शो मी योर बुक. ओके, थैंक यू शुभम. थैंक यू हर्षवर्धन. चलो. Actually, Ansh is not having book. How will you mark the answer? Okay. Good. Acha, now I will tell you the question and answers. Okay. Need not to write answers on copy. Just write question. If you are comfortable while writing the questions on book, well and good. Otherwise, you will write the question on copy. Fair copy. ठीक है? चलो, जैसा आपको ठीक लगता है, चाहे बुक पे लिखो चाहे कॉपी पे लिखो, बट यू विल डेफिनेटली राइट द क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स. सारे 5 मार्क्स से करवाने वाली हूँ. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल चेक योर कॉपीज लास्ट 5 मिनट्स बिफोर वाइंडिंग अप द क्लास. ओके. हाँ जी, शुभम ठीक से बैठ जाओ माय डियर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. नाउ ओपन योर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. दिस इज चैप्टर nationalism in India. Okay, overview hai. You can add only introduction, nothing more than that. Now the first World War, Khilafat and non-cooperation movement. Write down your question. यहीं पर question फटाफट लिख लीजिए. This paragraph ना, this paragraph. Now write here question. What was the effect of First World War? What was the effect of First World War? मुस्कान, कैमरा ठीक करो बेटा. Okay, now you can easily make 3 or 5 points from here. अपने आप, now to you people are expert, है ना? How to make point and relevant heading also. Now second question, Satyagraha. Okay, thank you Shashank, I'm proud of you. Thank you beta, good boy. Now here next paragraph. Now you will see in next paragraph idea of Satyagraha. Now write question here. If you want to write on copy you can. Again I'm telling you, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि स्पेस बहुत कम है and question carry 2 lines, so you can write in copy. What was the idea of Satyagraha? Who launched it?
What was the idea of Satyagraha? Who launched it? Explain the places with reasons. Gurpreet, camera on. Explain the places with reasons. Okay, now definitely answer is here. You will start your introduction from next page, because here you will have to just say 1915 mean the Mahatma Gandhi I think India, one line only. Now the perfect introduction from here only. This short paragraph introduction. I'm telling you, please take a pen in your hand. Second line, the idea of Satyagraha emphasized. From here up to violence. This will be introduction. Mark here and please write here introduction. Gurpreet, video on, otherwise I will remove you, beta. Now first point, second paragraph पे आ जाओ. In 1916, make it number 1. In 1917, make it number 2. In 1918, make it number 3. Okay, with reasons. हाँ शशांक बेटा. Ma'am, in my book it is 1917. Champaran one. First. And second? 1917. Then third 1918. First भी 1917 है. Yes, ma'am, 17. चलो कोई बात नहीं, फिर 1917 चल लें तो. बट इफ यू विल राइट 1916 तभी भी रॉन्ग नहीं होगा. सी मेरी बुक में 1916 है. एनसीईआरटी झूठ नहीं बोलेगी. क्लोज अप कर देती हूँ, क्लोज कर देती हूँ. ठीक है, ठीक है. तो 1960 विल बी करेक्ट, 1917 विल बी करेक्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा. द रॉलेट एक्ट, another 5 marks answer. Now please write here question. चाहे कॉपी पे लिख लो चाहे बुक पे लिख लो. What was Rowlatt Act? लास्ट 5 मिनट्स में कॉपी चेक होनी है. What was Rowlatt Act? Who launched it? What was Rowlatt Act? Who launched it? What was its result? या consequences, कुछ भी कर लो. What were its results? 5 marks answer. Now, ready for answer? Show me thumbs up if you are ready for answer. Okay, thank you, Muskan. Thank you, Shashank, Rohit. Okay, thank you very much. Now see, this is the paragraph Rowlatt Act. Last one. Take a pen in your hand. First of all, I'll give you the introduction. First line in between. Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council. Better your 1 mark answer. Imperial Legislative Council इसने पास करा था. Despite the united opposition of Indian members, it gave government the enormous power to repress political activities and allowed detention to political prisoners without any trial for 2 years. This will be introduction. Okay, what was Rowlatt Act? वो क्या था? First part. Now make heading reaction of the people, reaction of the Indian leaders. आप heading कैसे बनाओगे? जगह कम है ना. See, here it is written ना, second last line महात्मा गांधी. Screen पे देखो. It is written ना महात्मा गांधी वाली line 2 line. यहाँ पर लिखो reaction of the people and leaders. This is the second part. Reaction of the Indian leaders and people. So you will include 1 line only. Mahatma Gandhi wanted non-violence, civil disobedience against such unjust law, which would start with the हड़ताल on 6 April. ये रिएक्शन था हमारा. अब हम 6 तारीख को 6 अप्रैल को हड़ताल करने वाले हैं.
Now it is written rallies were organized. Second paragraph. Now write here effect. Effect. अंश writing. इफेक्ट लिख लो चाहे रिजल्ट लिख लो, वन अदर सेम थिंग। अब इसके अपने आप पॉइंट बना लेना, यहाँ आपके रैलीज वाला एक पॉइंट बनेगा, देन लोकल लीडर्स वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये आप खुद भी अपने आप से पॉइंट बना लेना। अब 10 अप्रैल को अमृतसर में ये सब इकट्ठे हुए, और उसके बाद 10 अप्रैल के बाद अभी क्या आने वाला है, आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, लास्ट लाइन स्क्रीन पे देखो, here it is written martial law was imposed, ब्रैकेट बंद कर लो, क्वेश्चन फिनिश, Rowlatt Act finish. Ansh, unmute yourself. Read next line. Martial law was imposed. Read next line, क्या लिखी है? Unmute करो. Martial law was imposed and General Dyer took command. चलो, अब जनरल डायर आ गया तो अगला क्वेश्चन कौन सा होगा आज? Oh, what is this? Even kids know जनरल डायर आ गया तो कौन सा क्वेश्चन होगा आज? मैम जनरल डायर वो जलियांवाला बाग हाँ, yes, जलियांवाला बाग वाला। Now write question for 5 marks, चाहे अगले पेज पे लिख लो। नेक्स्ट पेज ऑन 13 अप्रैल, देखो सी बुक पे देखो, स्क्रीन पे देखो मेरी बुक पे, here it is written ना on 13 अप्रैल, यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, ऊपर जगह है, डिस्क्राइब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, 5 मार्क्स, अरे लॉन्ग आंसर करवा रही हूँ मैं। डिस्क्राइब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। गुरप्रीत वीडियो ऑन माय डियर। हर्षवर्धन थोड़ा कैमरा से पीछे हो ना, मेरे को पता चले तू लिख रहा है। हाँ ऐसे, यस यस, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ओके बेटा, हाँ जी, डिस्क्राइब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन विल कैरी 3 पार्ट्स, रीजंस, कोर्स, इफेक्ट। ओके, नाउ रीजंस। रीजन आप पीछे से ही ले लोगे कि सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च हुआ, देन रॉलेट एक्ट पास हुआ, वी वर नॉट हैप्पी विद दैट, और वी वर गैदर्ड इन अमृतसर, ठीक है, 13 अप्रैल को गैदर्ड हुए थे, तो ये रीजन पीछे वाले से आप उठाओगे। ओके, क्लियर बेटा? नाउ कोर्स मतलब हुआ क्या उस दिन, मेन थिंग। नाउ योर कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑन 13 अप्रैल, यहीं से ही शुरू हो जाएगा आपका। इसके पॉइंट चाहे खुद बना लेना, 3 पॉइंट्स। On 13 April, infamous. अच्छा, why we called it infamous? शुभम, unmute कर जरा। Famous word तो सुना हमने। Why we called infamous? गलत लिखा गया इनसे। Yes, ma'am. Why it is written infamous? Read first line. देख मेरी बुक पे देख। First line ना? On 13 April, the infamous Jallianwala infamous? Bagh incident took place. Infamous क्यों लिखा? Famous क्यों नहीं लिखा? Negative impact था, negative impact होगा इसलिए। Yes, famous हम करते हैं मशहूर हो जाना अच्छे के लिए, हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट। इनफेमस मतलब जो चीज नेगेटिव तरीके से इतना ज्यादा वहां पर ब्लडशेड हो गया तो फेमस नहीं, इनफेमस हम मानते हैं। ट्रेजेडी थी ये बहुत बड़ी, ठीक है। अंश, स्टॉप ईटिंग, स्टॉप ईटिंग एंड स्टॉप टॉकिंग, सुन ले पहले। नाउ कोर्स ऑन 13 अप्रैल से लेकर देन ओ तक नहीं आएगा वैसे, 100 तक, दिस विल बी कोर्स। यू कैन ऑल्सो मेक पॉइंट्स फ्रॉम हियर, सब पॉइंट्स बना लेना इसके। लास्ट लाइन नहीं आनी है, बाकी सारा कोर्स में आएगा इसके, मेन कोर्स में कि हुआ क्या था 13 अप्रैल को, 100 तक लगा लो। अच्छा, ऑब्जेक्ट मतलब क्यों करा उसने, जनरल डायर ने ऐसा करा क्यों, सेपरेट लाइन एक बनाकर आप डालोगे, जस्ट टू क्रिएट द टेरर एंड ऑ अमंग द इंडियन पीपल, सिर्फ डराने के लिए, उनको सिर्फ डर का माहौल बनाने के लिए। ओके, नाउ इफेक्ट, सेकंड पैराग्राफ मेरी बुक पे देखो, सेकंड पैराग्राफ, एज द न्यूज, राइट हियर हेडिंग इफेक्ट और रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, वन अदर सेम थिंग। शुभम, आर यू राइटिंग? Okay,
Last 5 minutes, I will check your notebooks. Now, next question. Show me thumbs up if you people are ready for the next question, 5 marks. Thank you. Shashank, Ansh, Rohit, Shubham, Muskan, Harshvardhan, and Nikita. Thank you very much. Now, next question. Why is the role at Satyagraha? इस पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन लिखो. What was खिलाफत issue? What was खिलाफत issue? Why Gandhiji joined it? Why Gandhiji joined it? मुसलमानों का था खिलाफत, तो गांधी जी क्यों साथ मिल गए? Now easily you can carry 5 points from this paragraph with heading. Appropriate heading खुद ही ढूंढ लेना. Now you are well trained कि मैम कैसे यहाँ पर points बनाती हैं और कैसे heading निकालते हैं. So here you can take out 5 headings. ठीक है? तो this is a 5 marks answer. हो जाएगा? Done? Will you do it? Okay, ठीक है बेटा. Thank you very much. Now why non-cooperation movement? अच्छा मुझे बता दो फिर शशांक इसमें क्या ऐड करोगे? खिलाफत इशू में ऐड किया. अनम्यूट करो बेटा. 5 points बताओ मुझे. 5 things. कट शॉर्ट में बता दो. But you मैम फर्स्टली स्टार्ट क्यों हुआ कि जो ऑटोमन एम्परर था उस पे पीस सिटी इंपोज करी गई थी, तो उसके लिए सेकंड पॉइंट में कमेटी सेटअप करी गई. फिर उसमें जो लीडर्स थे उन्होंने गांधी जी को बोला कि इसके ऊपर हमें एक मास एक्शन करना चाहिए. देन गांधी जी ने कांग्रेस सेशन में कांग्रेस को परसुएड करा कि एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च करनी चाहिए खिलाफत के सपोर्ट में और स्वराज के लिए भी. इसमें यही आएगा आंसर. गांधी जी ने सिर्फ उनकी एक कॉल पर चले गए. हम किसी के बुलाने पे थोड़ी चले जाते हैं. थोड़ा अपना भी मतलब होता है. गांधी जी का थोड़ा अपना भी मतलब था. तो क्या था? वो क्यों चले गए मुसलमानों के साथ? हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए. हाँ, एक्चुअली ही वाज सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम अंडर वन अम्ब्रेला. तो उनको लगा यही एक मौका है, मुसलमानों को हमारी जरूरत है, हम वहां जाएंगे और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. ब्रिटिशर्स मुस्लिम के भी दुश्मन, हमारे भी दुश्मन. सो गांधी जी ज्वाइंट. ठीक है, चलो गुड बॉय. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का तो बड़ा अच्छा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. ठीक है, नाउ स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन हियर. यहाँ स्पेस है थोड़ी सी, यहीं पे लिख लो. Why non-cooperation movement was launched? Explain its course. Explain its course. Why this movement was called off? Now 3 चीजें मैंने आपसे पूछ ली. Why this movement was called off? Why this movement was called off? Double F. Double F. Harshvardhan, unmute yourself. ये called off क्या होता है? What is called off? Called off क्या होता है? हर्षवर्धन. शुभम, unmute yourself बेटा. मैम पीछे हट जाना. हाँ, वेरी गुड पीछे ले शुभम. लिया उन्होंने. हाँ, पीछे हट जाना, बुला लेना. गांधी जी ने पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी, फिर वापस ले ली. तो सोचो जो लोग इतने इंथुजियाज्म से, इतनी एनर्जी से पार्टिसिपेट कर रहे थे, गांधी जी की एक कॉल पर चल पड़े थे, तो फिर उन्होंने मूवमेंट वापस ले ली. तो सोचो उन लोगों पे क्या बीती. इवन कि ही रीलॉन्च्ड द मूवमेंट, बट बाद में फिर लोगों ने ट्रस्ट नहीं रहा एंड दे डिडंट जॉइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना. सो दिस विल बी द आंसर.
for this question, right? So सारा आंसर आपको you will get from page number 55 है मेरे पास, from this page. From here you will get non-cooperation, मतलब not to cooperate with the Britishers, सारा का सारा इसमें आ जाएगा boycott movement. And boycott movement में you will add many lines with the points, with the headings. Then उसके बाद finally Congress session नागपुर वाला add करोगे. Then you will add called off. Called off मिल जाएगा आपको, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना कि मैम कॉल्ड ऑफ, रीजंस फॉर कॉल्ड ऑफ नहीं मिला, तो देन आई विल सेंड यू द रेडीमेड आंसर फॉर दैट. अच्छा, उसके बाद देखो डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट. नाउ यू फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम हियर. देखें तो जरा. अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? निकिता अनम्यूट करना. टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन नाउ? मैम 6 हो गए. चल निकिता, 7 7th क्वेश्चन तू बना. काफी डिफिकल्ट है, मैम से नहीं बनेगा. तू बना तो जरा 5 मार्क्स आंसर. डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट. हाँ, मैम 1 minute. okay, no problem, take your time. Ma'am, it can be one question that what are the causes of the failure of NCM? ठीक है. And this answer you have to add in the previous question also. If this question come for 5 marks, आपको NCM में भी ये भी डाल देना आपने. ठीक है, causes of failure. हाँ शशांक बेटा, अनम्यूट कर रही हूँ. Ma'am, 3 questions can be made. Yes. First is how middle class people participated in this movement. Second Okay. is it is in codes that effects of non-cooperation movement on the economic front were more dramatic. What were the economic effect? Value of imports fell. And the third question is what were the causes of slowdown of non-cooperation? Okay. Movement. Now show me paragraph for each answer so that all people can note down, because 3 paragraphs, 3 questions are there. Now listen Shashank, and I will make him correct. Show me your book. Okay, very good. Yes, There are visible. Yes, visible. So 1 paragraph for each question. First is of people, second economic, third slowdown. ठीक है, let them write. Means the first question will be participation by middle class people. Middle classes. Okay, why middle class people participated? तो मद्रास वाली बात लिख देना कि और कहीं इलेक्शन नहीं हुए थे, बट मद्रास में हुए थे. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, बायकॉट मूवमेंट. देखो, सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस आर गिवन हियर. देखो, वो हर कोई याद नहीं कर सकता. ओनली फ्यू पीपल विल रिमेम्बर दैट. तो यू आर हैविंग ओनली 2 चैप्टर्स. कैसे कोई लाइन छूट जाए कि हम याद ना करें? ठीक है. अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट विच लाइन? हर्षवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ. आई एम टॉकिंग अबाउट विच लाइन? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो आप. मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके. हाँ, यस, थैंक यू मुस्कान. मुस्कान ने मुझे बुक की लाइन दिखा दी. Now these are some of the lines that all the people will not learn. Otherwise तो सबको आते हैं बेटा, चैप्टर सबको आता है, सबको क्वेश्चन आते हैं. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबको आता है, but some of the lines only good students will add कि बाइकॉट मूवमेंट से पहले क्या हुआ था और बाइकॉट मूवमेंट जब हुई तो ब्रिटिशर्स पर क्या इफेक्ट पड़ा था. You can also add one more line that Gandhi ji used to say that if the Indian people will not cooperate with the Britishers, the whole British system will collapse within 1 year only. If they are surviving in India, this is only and only due to our cooperation. घर में कोई आए ना गेस्ट, उसको ना बुलाएं, उनसे बात ना करें, है ना, 5-10 मिनट में वो चला जाएगा. अगर हम उससे बैठे रहे, कॉपरेट करें, बात करते, तो बैठा रहेगा 1-1.5 घंटा. और जो बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स है उनका टाइम खराब करता रहेगा. तो गेस्ट को 5-10 मिनट में चलता करते हैं और अपना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं. अंश, एम आई राइट? ठीक है, चलो. तो नाउ रिबेलियन इन कंट्री साइड. अब कंट्री से बाहर भी कुछ हो रहा था. नाउ सी दिस नेशनल मूवमेंट वाज कंट्री वाइड. शहरों में तो हमने पढ़ लिया, मिडिल क्लास भी अभी शशांक ने बनाया क्वेश्चन. नाउ कंट्री वाइड भी ये सब चल रहा था. ओपन योर बुक एट पेज नंबर
I'm having 59. I don't know you are having new books or the old one. Now, this paragraph, can you see here beside the green box in Awadh? In Awadh. Now, write here question. Muskan, unmute yourself. Now, tell me question. आप भी अनम्यूट पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हो आप कुछ एक बच्चे खुद को अनम्यूट नहीं कर पा रहे आई डोंट नो व्हाई निकिता अनम्यूट योरसेल्फ टेल मी द क्वेश्चन व्हिच यू विल फ्रेम फ्रॉम दिस पैराग्राफ द लेंथी वन Ma'am, what was the contribution of Baba Ramchandra for the nationalism in India? very good now start writing this question repeat करो निकिता Ma'am, the question is that what was the contribution of Baba Ramchandra for the nationalism in India? yes 5 marks answer to beautiful and lengthy paragraph is given here easily बना सकते हो 5 point with appropriate heading ठीक है अच्छा I am telling you the main things because this is revision class and if you people feel any kind of difficulty while writing or while making the points with headings please WhatsApp me your doubts and I will definitely help you out right next Goodham Hills वाला next page पे आओ बेटा यहां से क्वेश्चन बनाने वाला है अंश नेक्स्ट पेज पे अंश फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेकंड लाइन लिखी इन गुडम हिल्स जब गुडम हिल्स की बात दिमाग में आती है तब सिर्फ एक ही बंदे का नाम याद आता है अंश अनम्यूट बेटा नहीं बना पाओगे नो प्रॉब्लम आई विल हेल्प यू अंश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा मैम ये पैराग्राफ उससे रिलेटेड है जिसमें सारे वो जो वर्क करते थे उनको वहाँ अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया था हाँ पढ़ तो सही सेकंड लाइन पढ़ तुझे याद आ जाएगा क्लास में भी पढ़ाया था सेकंड लाइन पढ़ो जरा मैम व्हाट वाज मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट हाँ ठीक है हाँ 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 तो कैन यू टेल मी द फेमस नेम गुडम हिल्स में से मिलिटेंट गुरिल्ला कैन यू टेल मी द फेमस नेम हीरो था वो वहां का याद आया कुछ या ऐसे कैसे नहीं याद आया आपको चल शुभम टेल मी दैट फेमस नेम द हीरो ऑफ द गुडम हिल्स अलूरी सीताराम राजू एलूरी सीताराम राजू अलूरी सीताराम राजू क्यों हीरो क्यों था वो शुभम क्या कहता था क्या था खास उसमें घूमती तरफ मैम- बाइक चलाता था मैम क्या बोलते हैं वो उसने मतलब गुरिल्ला वो स्टार्ट की थी और उसने वो गांधी जी का बहुत मतलब वो फैन था वो एक तरह का फैन था वो गांधी जी का और ठीक है पर वो एक बात के लिए खिलाफ था कि उसको लगता था कि थोड़ा वॉयलेंस होना चाहिए मतलब इंडिया को लिबरेट करने के लिए ठीक है फिर कुछ खास बात भी थी उसमें हम्म, यार कि हीरो के साथ क्या होता है हीरो वाली साइड आती है व्हाट हैपेंड विद द हीरोज इन द फिल्म्स शुभम अब सनी देओल है वरुण धवन है शाहरुख खान है हाँ इनके साथ जब फाइट होती है विलेंस को मारता है हाँ वो तो मारता है अच्छा एक चीज और जो मैं सुनना चाहती हूँ ना वो बता नहीं मैम पा उसने रही हूँ लोगों को वो किया था उसने लोगों को वो किया था क्या बोलते हैं मतलब खादी पहनो फिर हाँ मतलब इंडिया के लिए लोगों के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग जगा रहा था एक तरह से मुझे लग रहा है। एब्सोल्युटली राइट पर जो मैं सुनना चाहती हूँ उसमें क्या ऐसी ऋतिक रोशन जैसी बात थी सनी देओल वरुण धवन जैसी शाहरुख खान जैसी बात थी उसमें कहता था तभी तो उसको हीरो बोलते हैं ना शशांक बताने वाला मुझे अंश से पूछते हैं अंश बता जरा क्या खास था उसमें शुभम नहीं बता पाया अच्छा मैम खास तो नहीं एंड में मतलब एग्जीक्यूट कर दिया था उसको एंड में बेचारा मर हीरो गया का था रोल हाँ एंड में बेचारा मर गया था ठीक है एग्जीक्यूट कर दिया था गुरप्रीत तुझे मैं राइट नहीं दूंगी अनम्यूट के बिकॉज यू आर नॉट स्विचिंग ऑन योर वीडियो ठीक है चलो दिस राइट गोज टू निकिता निकिता उसमें क्या हीरो वाली बात थी भाई
Ma'am, firstly, he was said to be incarnation of God, and he was having some special magical powers that he can even survive with bullet shots. हाँ, गोली भी नहीं लगेगी उसको। अंश, शुभम ये बात थी, अंश ये बात थी कि उसको गोली भी नहीं लगेगी, बुलेट शॉट से भी नहीं मरेगा, लाइक हीरो। और वो अपने मरने तक अपने एरिया में हीरो बन चुका था। एंड मेनी ऑफ द पीपल वर टोटली, कह लो कि उसकी पूजा करते थे। स्टिल नाउ इन गुडम हिल्स में आज भी सीताराम राजू को जाना जाता है। और अपनी डेथ तक, असैसिनेटेड तक, उसको जब तक एग्जीक्यूट किया, मारा गया, तब तक वो अपने एरिया में हीरो बन चुका था। So this is 5 marks answer, appropriate with appropriate heading you have to write. Right. Chalo. Next. Swaraj in plantation. Swaraj is a Hindi word. Swa means myself. Raj matlab mera raj, mera kingdom, mera apna raj. This was the motto, this was the objective of Indians in front of Britishers. Ab hame Swaraj chahiye. Now we don't want dominion status for India. Now Gandhi ji told this कि अब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। नाउ वी वांट स्वराज, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ विच क्वेश्चन विल यू फ्रेम फ्रॉम हियर? चौरी चौरा वाली इससे रिलेटेड नहीं है, नीचे फोटो दी है उसको छोड़कर, देन यू विल फ्रेम क्वेश्चन। स्वराज इन प्लांटेशन। हाँ जी शशांक, अनम्यूट कर रही हूं मैं। लॉन्ग बनाना है, 5 मार्क्स आंसर बनाना है इसमें से। What was the system of Swaraj in plantations? और करके भी क्वेश्चन 5. 5 Yes. मार्क्स। हाँ Explain the condition and effects of the plantation workers during the colonial rule in India. ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो इंक्लूड पेज नंबर 61, मतलब यहाँ से भी इंक्लूड कर सकते हो आप, स्वतंत्र भारत, हिंदी का वर्ड है ये भी, स्वतंत्र भारत। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन यू विल डायरेक्टली डू फ्रॉम हियर विद पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन, विद एप्रोप्रिएट हेडिंग। ठीक है, चलो काफी ज्यादा तो नहीं हो गया, सब भूल तो नहीं जाओगे? चलो इतने क्वेश्चन इनफ है। अच्छा, नाउ शो मी योर कॉपी वेयर यू हैव रिटन दीस क्वेश्चंस। अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? अंश कितने क्वेश्चन हो गए हैं? पहले मुझे ये बता, टोटल क्वेश्चन में अंश कितने हो गए? अनम्यूट करो। अंश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम 9 या 10। 9 मैम या एक 10, वीक बनानी। ठीक है। शशांक, हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन? 9 और 10? मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो मेरे मिक्स्ड है, तो आई एम नॉट श्योर। अच्छा निकिता, हाउ मेनी क्वेश्चंस? अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे? Ma'am, I have also already written first अच्छा, only. वो पुरानी बुक से हम रिवाइज कर रहे हैं ना, पर मुझे लगता है Yes. शुभम हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन टुडे? मैम 12। 12 हो गए बस, और नहीं करेंगे, 12 हो गए बस। इसमें से 4 क्वेश्चन और निकलेंगे, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 4 क्वेश्चन करके एक बार मैप करवा दूंगी। ओके, चलो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड रिगार्डिंग दीज 10 क्वेश्चंस? ओके, अगली बार ना अंश, अगली क्लास में यू विल टीच अस मैप। यस, मैप आप हेल्प करोगे। ठीक है, ड्रॉ करूंगी मैं बोर्ड पे, देन यू विल फिल द स्टेशंस। अच्छा, कांग्रेस सेशन कितने? बुक्स बंद कर दो, नाउ क्लोज योर बुक्स, कीप इट असाइड। लास्ट 2-3 मिनट्स जरा आपसे कुछ फीडबैक ले लूं। हाउ मेनी कांग्रेस सेशन वाज देयर? वैसे तो बहुत से हुए थे, बट इन आवर बुक। अंश अनम्यूट करो बेटा। टोटल कितने कांग्रेस सेशन हुए? मैम 4। वेरी गुड, चारों के चारों बता दो। नहीं, ऐसे नहीं भाई, 2 बता देता, 2 मैं हेल्प कर देती। चलो, मुस्कान अनम्यूट योरसेल्फ। मुस्कान, यू नो, मैं सिर्फ तेरी लिप रीडिंग पढ़ रही हूँ। मैं कलकत्ता तूने बोला, नागपुर बोला, बट यू वर नॉट ऑडिबल। आप ऑडिबल नहीं हो बेटा। शशांक, एम आई राइट बेटा? निकिता, मुस्कान ऑडिबल नहीं है ना, बट उसकी लिप रीडिंग से मुझे पता चल गया कि उसने कलकत्ता हाँ, बोला।
है ना? चलो कोई बात नहीं. Now you tell me the 4 Congress session. Only places. Year मत बताना. Only places. कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, लाहौर. ठीक है. Now हर्षवर्धन भी अनम्यूट नहीं कर पा रहा था. हर्षवर्धन एक जरा अनम्यूट करके. Now will you able to unmute yourself? Yes, where the Congress session held in September 1920. मैम 1920. मैम कोलकाता. हाँ जी, राइट आंसर बेटा, कोलकाता. नाउ निकिता, दिसंबर 1920. अब 1920 में दो जगह पर हुए थे. मैम नागपुर. नागपुर, करेक्ट आंसर. नाउ शुभम, अनम्यूट योरसेल्फ. 1927. 1927 में लाहौर. नहीं, लाहौर में नहीं हुआ था. मुस्कान, अनम्यूट करो. हाँ जी, वेयर द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927. मद्रास. अगेन मैंने आपका लिप रीडिंग पढ़ा कि आपने मद्रास बोला है. राइट, मद्रास. 1929. अंश, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम लाहौर ही रह गया अब तो. हाँ, लाहौर ही रह गया. कॉमन सेंस की भी बात होती है. ठीक है. अच्छा, तुझे पढ़ने का शौक है और तेरा दिमाग भी तेज है, बट थोड़ा सा लापरवाह तू भी. आराम से कैसे कैजुअल होके बैठा हुआ है. चलो ठीक है. ना ओपन योर कॉपीज. लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्लास वाइंड अप हो जाएगी. 4 कांग्रेस सेशन, फटाफट हेडिंग बना लो, क्योंकि शुभम भूला, अंश भूला. अब अगली बार नहीं भूलोगे, बिकॉज नेक्स्ट टाइम वी विल डू रेस्ट 5 क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस जितने भी रह गए, एंड मैप. 4 कांग्रेस सेशन. नंबर 1, September 1920. Calcutta. Number 2, December 1920. Nagpur. Uh, 1927. Madras. And last 1929. अंश ने बोला एक ही तो बच गया, लाहौर. चलो, thank you very much. And now I'm going to end up the class. If you feel any doubt while writing, any problem, then you can send me WhatsApp message. Thank you very much. God bless you, beta. Thanks for joining. Thank you, beta.